Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel. Edusphere. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है चैप्टर नंबर 3। इसकी बात करेंगे। जनरली इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? याद रखेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। देखिए यहाँ जो वेरिएबल है ना x, उसका एक्सपोनेंट है 1 एंड y इसका भी एक्सपोनेंट है 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? लाइन प्रोड्यूस करता है। और ये क्या है? दो लाइन, दो इक्वेशन है लाइन के, और दो लाइन से हम क्या करेंगे? दो आंसर ढूंढेंगे। ओके, हियर a1 and a2 are the coefficient of x, okay, and b1 and b2 are the coefficient of y, whereas c1 and c2 are the constant term. Now they produce line if a1 by a2, what? a1 by a2, the ratio of x coefficient, that is a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it's not equal to c1 by c2. Then what happens? They make parallel line. What kind of line? Parallel line. They never intersect each other at any point. So they are what? Parallel line. If we have a1 by a2 is equal to b1 by b2, a1 by a2 is equal to what? b1 by b2 is equal to c1 by c2। क्या हो गया? एक ही लाइन है और दोनों लाइन इसी लाइन के ऊपर, right? Because the ratios are same, so they are known as coincident line. What kind of line? Coincident line. Coincident line. Okay, and they have infinite many solutions. Parallel line does not have any solution, whereas coincident line many solutions. Okay, now we have a1 by a2. What? a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then they are intersecting at one point. So they are intersecting line. Okay, they are what kind of line? Intersecting line. Now if any line intersect in one point, we say it has one solution or it has one intersecting point. If a linear equation which has no solution means it is parallel line. No solution, it is known as inconsistent pair of linear equation. What it is known as? Inconsistent pair of linear equation. A pair of linear equation in two variables which has a solution is called consistent. Consistent linear equation. Okay, a pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distant common solution. Means अगर inconsistent किसे करेंगे? जो पैरेलल है, then never intersect each other. Whereas consistent किसे बोलेंगे? जिसको which has a solution, मतलब कि कोई एक पॉइंट पे जो
इंटरसेक्ट करती है, इसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ओके, इक्विवेलेंट मीन्स जिसके पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, मीन्स दे आर कोइंसिडेंट लाइन, दे आर कोइंसिडेंट लाइन हैविंग two line at one another, it is known as coincident line, and they are known as dependent pair of linear equation in two variable, and dependent pair has equal solution, so they are consistent. Okay, कैसे ये consistent है? देखते हैं, आगे देखेंगे अभी। if we are given two line, one is x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. Now see, here our a1 is equal to what? a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 2, and c1 is equal to 0. Okay, here nothing, so we can add 0. Now what is b1? b1 is equal to no, a1 is equal to 3, b1 is equal to 4, and c1 is equal to minus 20. Now we have to find the ratio a1 by a2. a1 by a2, a1 divided by a2 is equal to 1 by 3, b1 by b2 is equal to minus 2 by 4, that is 1 by 2 minus 1 by 2, and c1 by c2 is equal to 0 by 20, that is 0. c1 divided by c2 is equal to 0 by 20, so we have 0. Now they are intersecting line. Okay, they are what kind of line? They are intersecting line. Okay, now second one, they are from the example given in our textbook. Okay, now we have example 2, that is given 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. Second one is 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. Now what we have to find? We have to find a1 by a2. What is a1 by a2? a1, this is our a1, this is our a2. So a1 by a2 is equal to 2 by 4 is equal to 2 divided by 2 into 2, 2 cancel, is equal to 1 by 2, is equal to what? 1 by 2. Now we have b1 by b2. What is b1 by b2? b1 by b2 is equal to 3 by 6 is equal to 3 into 1 divided by 3 into 2. This is answer. Our answer is 1 by 2. Now c1 by c2. What is c1? Minus 9. c1 by c2, we have c1 by c2, that is minus 9 divided by minus 18. Minus minus plus cancel. 9 divided by 2 into 9. 9 cancel. Our answer is 1 by 2. Okay, क्या है answer? 1 by 2. So they are a1 by a2. There are a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So they are coincident line. कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन. ओके, कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन मीन्स एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है. आप इसके कोई भी डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते. ठीक है. नाउ वी हैव थर्ड वन. एग्जांपल का ही है थर्ड वन. ये क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है 2x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. ओके, ये क्या है? सॉरी, कुछ गड़बड़ की है. जो सेकंड है ना, वो गलती से दूसरा लिख दिया है. देख लेते हैं क्या होता है. okay. तो पहले इक्वेशन हमने जो लिखा बराबर है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. जबकि दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y, सॉरी प्लस 4y
माइनस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। नाउ व्हाट इज a1? a1 इज इक्वल टू 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। व्हाट इज b1? b1 इज इक्वल टू 2 and what is c1? c1 is equal to minus 4, whereas here a1 is equal to 2, ये a2 है, a2 is equal to 2, second है b2 is equal to 4 and c2 is equal to minus 12. Okay, now what we have to do? We have to find the ratio a1 by a2. Now what is a1 by a2? a1 by a2 is equal to 1 by 2. Okay, b1 by b2 is equal to what? b1 by b2 is equal to, देखेंगे 2 डिवाइड बाय 4 कितना है? 2 डिवाइड बाय 4 ना, 2 डिवाइड बाय 4 is equal to what? 1 by 2. Now we have c1 by c2. Now what is c1 by c2? Minus 4 divided by minus 12 is equal to 4 3s are 1 by 3. So a1 by a2 and b1 by b2 are same. What? a1 by a2 is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to, is not equal to c1 by c2. So they are parallel line, and parallel lines never intersect each other. They do not have solution, so they are known as parallel line. Okay, non consistent, ये consistent नहीं है, इसका solution नहीं है. Okay, so देखेंगे आगे है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है चैप्टर नंबर 3 का. चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन. क्या है दिया है? पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है. कितना है? x प्लस 3 y इज इक्वल टू 6. अब क्या करेंगे? हमारे पास x है, इसको इधर ले जाते हैं. क्या होगा? x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y. 6 माइनस 3y है, क्या होगा? देखते हैं. हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक टेबल. टेबल के अंदर हम अपनी तरह से 2-3 वैल्यू लेंगे और इसके अंदर रखेंगे, हमको आंसर मिलेगा. और ये आंसर के अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं? ग्राफ, जो कि बहुत इजी होता है. तो हमको ये है x और ये है y. y की वैल्यू हम खुद लेंगे. ये ऊपर लिखा x और फिर लिखा y, ये ऊपर लिखा x और ये लिखा y. y की वैल्यू हम खुद रख सकते हैं. तो 0 1 2 -1 -2. ओके, अब हमको क्या मिलेगा? अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा? 6. अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 माइनस 3 कितना होगा? 3. अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 टू द 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0. ये कितना हो गया? 3 बन गया 3. ये हो गया 9. कितना हो गया? 9, है ना? कैसे? जैसे कि हम जैसे -1 लिखेंगे तो माइनस होगा 6 माइनस 3 इंटू -1. ये अगर -1 लिया ना तब तो कितना हो गया? 6 माइनस माइनस प्लस 3. क्या हो गया आंसर? 9. ओके, नाउ वी हैव x इज इक्वल टू -2. क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू -2. तो 6 माइनस 3 इंटू -2. So we have 6 minus 3 to the 6 minus minus plus. So answer is 12. Our answer is 12 here. Now we have to plot a graph according to these. So by taking x-axis, and y-axis, this is our x-axis and this is our y-axis. What we require on x-axis? We require 3 0, then
3, then 6, then 9, then okay, and here on y-axis we have 0, then 1, then 1, then 2, then 3. Here we have in opposite direction -1, -2, -3. Okay. So if I put 0, okay, if I put 0 on y-axis, I get 6 on this one. Okay. Now if I put 1, what I put? If I put only 1, okay, so I have to draw a graph of this particular equation. I have 1, I have 0, ये कितना हो गया? 0 है तो y6, ये हो गया 6 0 है ना, ये हो गया 6,0, ये हमारा 6,0, then 3,1, ये हमारा 3 और ये 1, 3,1, ये x3 y1, उसके बाद 2,0 यानी ये है हमारा 2,0, उसके बाद -1, ये -1 है तो कितना आएगा? आंसर ऊपर गया 9, और ये क्या बना? हमारा लाइन बना। कहाँ है लाइन? ये है लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसा लाइन बनेगा, आगे जाएगा तो -1 जब लेंगे तब मिलेगा हमको 9, -2 लेंगे तो 12 मिलेगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है? पहला लाइन हुआ। अब दूसरा इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 12। अब देखिए करेंगे क्या हम करेंगे 2x = 12 + 3y। अब क्या हो गया? x = what? 12 + 3y / 2। इसको क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं x = 12 का आधा हो गया 6 + 3/2 टाइम y। अब हमको क्या करना है? अब हमको वापस टेबल बनाना है, तो ये हो गया हमारा टेबल तैयार, ये हमारा टेबल, और टेबल के हम कितनी वैल्यू चाहिए हमको? 3 या 4। ओके, ये हमारा टेबल तैयार। पहला वैल्यू भी रहते ताकि लाइन सही से आ जाए। अगर जैसे हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इंटू y में नंबर कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 6। y की वैल्यू हम कितने लेते हैं? 2 लेते हैं। क्यों? डिवीजन में 2 है, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? 3। और y की वैल्यू हम लेते हैं 3, सॉरी ये कितना हो गया? y की वैल्यू हमने ली 2 2 कैंसिल, ये 3, और ये हो गया 6 + 3 9। कितना होता है? 9 होता है ना? हाँ। अब क्या किया हमने? 3 लिया, तो 3 तो कट होगा नहीं, y की वैल्यू 3 नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? तो y की वैल्यू हमको 2 के मल्टीपल में चाहिए। क्यों? ताकि वो आसानी से कट जाए। तो वो 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 + 6 हो गए 12। ओके, जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 4 लिखा, तो 6 + 3/2 टाइम 4, ये 4 का हो गया 2, 3 2 जा 6, 6 + 6 हो गए 12। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा मीठा लेते हैं, ये आपकी समझ के लिए था। ओके, देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन आएगा तो 4 मार्क में आएगा। कितने मार्क में? 4 मार्क में, उसमें पूरे 4 मार्क आएंगे। जैसे आपने 3 पॉइंट लगा दिए, बहुत है, ये 2 से डिविजिबल पर है तो 6 को लगा दो, 6 लगाएंगे तो क्या होगा? 3 3 3 9, 9 + 6 कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। अब 0 है तो 6 है, तो यहाँ पे हमने जो पहले ग्राफ बनाया ना उसी में बनाना पड़ेगा। 0 है तो क्या है? 6 है, 0 है तो 6 से आ गया। ओके, ये 0 6,
ये हमारा 0,6 है ना। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा लिखना पड़ेगा हमको। सेकंड क्या है हमारा 2, 9, क्या है 2 और 9, और ये तो हमारा -1, 9 है। फिर थर्ड क्या है, जैसे 2 लगाएंगे हम तो आया हमारा 9, और थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास 4, 12, कितना है 4, 12, और उसके बाद दूसरा क्या आता है 4। अब देखो ये सब लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तब कैसी हो जाएगी वो, तो ये दूसरी लाइन आ जाएगी और दो पैरेलल लाइन होती है। हम दूसरे भी तरीके से हम बता सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। कैसे, तो हम वापस इक्वेशन लिखते हैं। दो इक्वेशन दिए हैं हमको, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, वो जो 6 उधर है उसको इधर ले आए, और दूसरा है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, यहाँ 1 है ना। ना व्हाट, b1 बाई b2 इज इक्वल टू व्हाट, b1 बाई b2 कितने हो गए, ये हो गए ये कितने हो गए 3/-3, ये हो गया -1। तो क्या बोलेंगे हम, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। so they are intersecting and intersect at one point। अब यहाँ से हमको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो कैसे मिलेगा, क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे से टच होगी, है ना। तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं कैसे ढूंढते सॉल्यूशन इसका। ये है हमारी वैल्यू, क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो ये प्लस 3y कैंसल, ये कितना हो गया 3x, इसका एडिशन करें तो, और ये कितना हो गया 18। तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। अब अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं, क्या x की वैल्यू इसमें अगर इस इक्वेशन में 6 रखते हैं, जिसको दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अगर x की वैल्यू हमने क्या लगा दी 6, क्या होगा, x की वैल्यू रख दी है हमने 6, ये हो गया 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, so 3y is equal to 6 minus 6, so 3y is equal to 0, so y is equal to 0 divided by 3 is equal to 0। तो y की वैल्यू कितनी आई 0। ये कहाँ इंसिडेंट होता है 0, 3 पे, सॉरी x 6 है, x कितना है 6,0। इस पॉइंट पे ये क्या होता है, दोनों में मिलेंगे, मिल रहा है, देख लेते हैं हम। 0,6 यहाँ पे भी है और 0,6 यहाँ पे भी है। ओके, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कितने मार्क में पूछेंगे, 4 मार्क में। ओके, आपको ग्राफ पेपर देंगे। ऐसे तो हर बार नहीं होता है, लेकिन जैसे देख रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इस बार ये हो सकता है। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सीखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में बोला गया है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ग्राफिकली मतलब कि हमको ग्राफ बनाना है। हमको पहला इक्वेशन दिया है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमको दिया है 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा हमको
दिया हुआ है। डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ मतलब इसको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 5 से 15 एक्स माइनस ये 5 से 5 का ये कितना हो गया 24y प्लस ये 5 से 5 कैंसर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से 5 कैंसर, ये कितना हो गया 3 इक्वल टू 0 इंटू 5 कितना होता है 0। तो हमारा जो इक्वेशन क्या हो गया, पहला इक्वेशन तो ये है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। डिवाइड कर लेते हैं वापस, ठीक है, क्या करेंगे वापस लिख लेंगे। क्या दिया है हमको, पहला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास जो हमने बनाया अभी, वो है 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में, कि ये दोनों इक्वेशन है ना, वो क्या है, क्या ठीक है, क्या है ये हमको ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब क्या करेंगे, अगर इसमें से ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अगर हम दोनों तरफ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से 15 एक्स माइनस 8 से 24y प्लस 3 है ना, 3 बन जाए 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या बोलेंगे हम, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। और ये कैसे हो गया, इनका क्या मिलेगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कितना क्या मिलेगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। बेसिक में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड में 1 मार्क में पूछेंगे। कितने मार्क में, 1 मार्क में, क्योंकि बुक का है ना। ओके, तो इसके बाद हमको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिया है, एग्जाम्पल 3, Champa went to a sale to purchase some pant and skirt. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pant purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. Now, हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि जो स्कर्ट है वो कितने हैं, पहली बार में द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। अगर हम पैंट को एक्स ले ले, क्या लेते हैं एक्स, पैंट को हम एक्स ले लेते हैं और स्कर्ट्स को क्या लेंगे हम वाई। तो पहला इक्वेशन क्या बना हमारा, पहला इक्वेशन हमारा बना स्कर्ट इज इक्वल टू 2 टाइम पैंट प्लस 2, ऐसा दिया है ना, क्या दिया है, नहीं लेस देन दिया है, ग्रेटर देन नहीं दिया है, ऐड नहीं करना है, लेस देन दिया है, सॉरी लेस देन दिया है, तो क्या करेंगे हम माइनस, कहा माइनस, ये माइनस
और दूसरा कंडीशन क्या दिया है हमको? दूसरा कंडीशन दिया है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट परचेज, यानी कि अगेन ये है 4x माइनस 4, ओके, ऐसा दिया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के लिए हमको 3C सॉल्यूशन चाहिए, और 3C सॉल्यूशन के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। देखते क्या होता है। सॉल्यूशन तो पहले निकालते हैं दोनों का। तो दोनों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये जो एक है ना, अच्छा यहीं पे बना देता हूँ इस बार। तो कितने सॉल्यूशन चाहिए हमको? सिर्फ 3, 4 बन गए, ओके। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एक्स की वैल्यू हम खुद लेंगे, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स की वैल्यू हम खुद लेंगे 0, 1, 2, 3। एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो वाई कितना हो गया? -2। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 -2 हो गया 0। एक्स की वैल्यू हमने 2 ली तो 2 2 जा 4 -2 हो गया 2। एक्स की वैल्यू हमने 3 ली, 3 2 जा 6, 6 -2 हो गया 4, यानी कि ये तो एक हो गया, ओके। नाउ हम लोग दूसरा एक, यानी कि दूसरा जो हमारा इक्वेशन है उसके लिए ले लेते हैं। ये इक्वेशन के लिए, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम फटाफट से 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये x है, ये y है। हमको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है ना। हम x की वैल्यू लेंगे, कितनी लेंगे? 0, 1 एंड 2। अगर हम 0 लेंगे तो ये कितना हो गया? -4। जैसे हम इसकी वैल्यू 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 4 1 जा 4, ये हो गया 0। और हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 2 लेते हैं, तो 4 2 जा 8 -4 हो गया 4। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। जब जैसे ही हमने 0 1 लिया, इधर भी 0 1 आता है, यानी कि 0 1 ऐसी पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कौन से? 0 1 पे। क्या? 0 1 पे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0 1। देख लेते हैं वापस क्या लिया है। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 0 एंड 1। हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको बराबर से ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपको लिखे, एक्स एक्सिस पे कितने लेंगे आप? 1 1, यानी कि हाँ, एक्स एक्सिस पे लेंगे 1 1 और वाई पे भी लेंगे 1 1, और आप इसको बनाएंगे क्या, है ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ कहाँ से इंटरसेक्ट होगा? ये हमारे पॉइंट 1, 0 से, और दूसरा ग्राफ भी यहीं से पास होगा। आप बराबर बनाओगे तो बराबर आएगा। ये पेन टेप से लिखने की शुरुआत कर रहा हूं ना मैं, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद ठीक से हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है 3.1। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 3.1, जो कि हम दूसरे पार्ट में देखेंगे वीडियो के, ओके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।